Good morning students, welcome back to my YouTube classes. So today I am going to start another questions which is related to class 7, and that will be also helpful for the students of class 8 and 9 and those who are in class 10. And there is one chapter that is in this year which has included that is revision. Okay, so in the revision R5 is that is this kind of questions are there. Okay, so चलिए आइए solve करते हैं. So our question is the simplify the following using exponents and using what? Exponents identities. Exponent identities जो है, हाँ हमने क्या सीखा था, अगर a to the power m into a to the power n, so it will be what? If the bases are equal, then it will be what? Powers are what? Powers will be added. So with that kind of identities, that exponents identities, we will solve all the sums that is in the below. We have just firstly we have taken 3 questions. So after solving these 3, we will take next question. Okay, so due to lack of space, so I have just written only 3 questions. We will solve more than that. Okay, so आइए शुरू करते हैं. So give it solution before that. Roman 1 by using Roman 1. So if we know what, if bases are equal of an exponent, so okay, इसको पावर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं. इसको बेस एंड इसको क्या बोलते हैं? पावर. ठीक है. सो if here a to the power m, यहाँ पे हमने पावर क्या लिखा है? n और यहाँ पे m. ठीक है. a m n all are रियली नंबर्स है. ठीक है. तो जो भी नंबर्स है, देखो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर ले जाए, ठीक है, तो हमने क्या सीखा है एक्सपोनेंट्स के रूल्स के अनुसार कि अगर बेसेस आर इक्वल, यहाँ पे देखो बेस है, यहाँ पे भी है, तो पावर्स आर डिफरेंट, देन इन बिटवीन दिस टू टर्म्स आर मल्टीप्लाई साइन इज देयर. अगर दोनों टर्म्स का अगर मल्टीप्लाई साइन है तो क्या आ जाएगा? पावर विल बी एडेड. ठीक है. बेसेस आर इक्वल देन पावर्स विल बी एडेड. ओके, सो एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो 2 to the power 3 and 2 to the power 5, सो इट विल बी व्हाट? 3 प्लस, यहाँ पे देखो 2 बेस है एंड पावर्स 3 and 5, तो देयर पावर्स आर डिफरेंट एंड दिस टू टर्म्स बिटवीन व्हिच साइन इज देयर? मल्टीप्लाई. So that if multiply sign is there in between two terms, answer powers will be added. ठीक है. So इसी के अनुसार तो हम अगर देखें तो यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इन तीनों के टर्म्स में बीच में क्या है? Only multiply sign is there, is not it? So their powers will be what? Powers will be as per the rules. What? As per the rules will be added. तो देखो 5 plus 7 is 12, 12 plus 8 is 20. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा? सिंस a to the power m into a to the power m क्या होता है? a to the power m plus n. इसी के रीजन, इसी के एक्सपोनेंट्स के आइडेंटिटी का रीजन ये हमने किया है. ठीक है. तो यही आंसर है फर्स्ट वाले का. तो सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड वाले करने से पहले और 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं. ठीक है. तो देखो अगर 2 to the power 5 है, 2 to the power 7 है और 2 to the power 8 है. ठीक है, सपोज. तो यहाँ पे भी देखो बेस 2 है, तो क्या आ जाएगा? 5 plus 7 plus 8. ओके, सो 7 plus 5 अगेन कितना होता है? 12 and 12 plus 8 is 20. तो अगेन 2 to the power क्या आ जाएगा? 20. सो ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू वी नो सिंस व्हाट? सिंस a to the power m into a to the power m, we know what? m plus n, is not it? So this is the identity of the exponents, and why we have written behind this? What is the reason we have that the 2 on the base and the powers are all added? Due to this reason, due to the exponents identities, and we did in the last class. Okay, you can go through my channel and you will get all the classes over that. Okay, so अगर next example लिया जाए तो किसी भी बेस में आप नंबर लिखते हैं, चलो 5 लिखते हैं और 5 के पावर में 2 है, इनटू देके फिर 5 के पावर में 3 है और 5 के पावर में 7 है. ठीक है. 8 लिखा है मैंने, चलो 8 ही सही. तो अगर देखो यहाँ पे बेस किया है हम लोगों के लिए 5 और इन बिटवीन देम मल्टीप्लाई साइन इज है. ठीक है. सो 5 2 plus 3 plus 8. ठीक है. तो 5 2 plus 3 कितना है? 2 plus 3 5 and 5 plus 8 कितना होता है? 13. सो दिस वन विल बी द आंसर. जो पहले हमने लिखा था सेकंड क्वेश्चन क्या था? 2 to the power 7 into 2 to the power 6 डिवाइडेड बाय 2 to the 25. ठीक है. तो देखो यहाँ पे बेस सॉरी यहाँ पे 2 to the power 5 था. सॉरी, यहाँ पे 5 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 to the power 5 ही था क्वेश्चन में गिवन. ठीक है, नहीं तो टर्म से नहीं मिल रहा है ना आखिर में. तो देखो
यहाँ पे पहले वाले लाइन मैंने क्या था 2 to the power 5, यहाँ पे 2 to the power 5 सेकंड में आएगा, और इन दोनों में मल्टीप्लाई साइन है तो क्या आ जाएगा 7 + 6 तो 13। तो आखिरी में क्या होगा, देखो अभी जो फाइनल टर्म आया, फाइनल सिचुएशन जो आया क्या है, देखो इसमें ओनली इन बिटवीन टू टर्म्स डिवाइड साइन इज देयर, तो डिवाइड होता तो क्या है बेस इज इक्वल, तो डिवाइड आएगा तो क्या आएगा माइनस है, तो क्या आ जाएगा 13 - 5 इज 8। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो यहाँ पे क्या सबके बीच ये सब का बेस जो 2 है 2 डिवाइडेड बाई, फिर से जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्या है 2 to the power 0, 2 to the power 6, 2 to the power 7, ठीक है। तो बेस से सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो 0 + 5 + 8 पहला वाला ब्रैकेट में, बीच में क्या है डिवाइड साइन है, फिर से 0 + 6 + 7, ठीक है। तो 0 + 5 क्या है 5, 5 + 8 इज 13 डिवाइडेड बाई 0 + 6, 6 + 7 इज 13, ठीक है। तो देखो बेसेस आर इक्वल इन केस ऑफ डिवीजन, तो व्हाट विल बी देयर विल बी माइनस, तो 13 - 13 इज, देखो 13 से 13 चला गया तो क्या है 2 to the power 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट 1, और अगर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में अगर कोई आंसर को रखना है तो यहाँ पे ही आंसर खत्म, ठीक है। तो जल्द ये वाला इसका ही आंसर होगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में जितना भी बेसिस इक्वल है इन सबको पावर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है हर एक के बीच में। सो फिर सेकंड ब्रैकेट में भी सेम है, फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड होता तो दोनों टर्म में अगर डिवाइड है और इन दोनों का बेस सेम है तो क्या करना पड़ता है, पावर को माइनस करना पड़ता है, वही हमने किया है। चलो ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 3 अगर एक फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल पावर्स के में, ठीक है। अगर a to the power m पावर में फिर से अगर पावर है तो क्या आ जाएगा, देखो a to the power m into m, मतलब दोनों पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि एग्जांपल के अगर 3² अगर ऊपर में फिर से पावर 3 है तो क्या 3 लिख के बेस में जो 3 है वो लिखना पड़ेगा, इन दोनों पावर को क्या करो मल्टीप्लाई करो, 3 2 कितना है 6 है, बेस में जो 3 है वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे a मतलब बेस, पावर जो था दोनों पावर वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है 4 2 कितना आएगा 8 आएगा पहले वाले में, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 बेस में है और दो पावर है, पहला वाले पावर में है 2, फिर ब्रैकेट देके विद होल थिंग 3 है, ठीक है। तो 3 2 क्या आएगा 6। अभी देखो क्या आया, अभी जो ये दोनों टर्म में क्या आएगा मल्टीप्लाई साइन है और इन दोनों टर्म का बेस इक्वल है, ठीक है। तो बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो पावर अगर ऐड किया तो हमने क्या होगा 3 to the power 14, ठीक है। सो हमारा अगला जो 5th नंबर क्वेश्चन है ये है क्या है 16 to the power 4 2 8 to the power 3 डिवाइडेड बाई क्या है डिवाइडेड बाई 2 to the power 5 होल थिंग टू द पावर 2 है, ठीक है। तो पहले 6 देखो यहाँ पे क्या है 16 to the power 2 है, तो देखो क्या हम लिख सकते हैं 16 का किसका 2 to the power 4 अगर लिखा तो 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। तो मतलब देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 कितना है 16, तो 16 के बिहाफ में हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4, जो हमने 16 ना लिख के क्या लिखा है पहले वाले में 2 to the power 4 लिखा, क्योंकि 16 2 to the power 4 मतलब कितना है, तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 itself मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है। तो 2 देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 और यहाँ पे क्या था 16 के पावर में क्या था 2 था, तो इसके पर पावर रख दो सेम। आफ्टर दैट इनटू क्या है इसके पूरे के लिए मैंने सेकंड ब्रैकेट इसको, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट मैंने ऑलरेडी 16 के जगह पे यूज़ कर दिया, ठीक है 2 to the power 4 लिखने के लिए। फिर क्या है देखो 8 क्यूब, मतलब क्यूब किसको बोलते हैं जब अगर पावर में 3 लिखा है तो क्यूब 2 लिखा है तो स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से देखो 8 में अगर 8 की पावर में 8 to the power what 8 to the power 3, so that 8 मतलब what we can if you are writing 2 के पावर में 3, ठीक है। तो क्या 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई का इटसेल्फ, तो 2 2 4 4 2 8, ठीक है। सो दैट इज 8। सो ऑन बिहाफ ऑफ 8 2 to the power मतलब क्या है मैंने अभी बोला है कि 8 होता है, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ 8 वी कैन राइट सेम वे, ठीक है। मतलब 8 की जगह पे ओनली बिहाफ ऑफ 8 वी आर राइटिंग 2 to the power क्यूब एंड होल थिंग टू द पावर कितना था 8 जितना भी 8 के पावर में था वो भी साथ में लिखना है, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई
2⁵ जितना भी एनसीईआरटी के क्लास 7 में है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स जो भी है सबके पास यही जो 13 के चैप्टर में शायद 13.1 से मैंने ये सब करवा रहा हूँ, ठीक है, 13.1 और 13.2 आई डोंट नो, एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन क्लास 8, इन क्लास 7, क्लास 6, even in class 9, 10 also, even 10 in class 10 revisions are there in regarding related to revision chapter, these are helpful, okay. So जितना भी रिविजन है वो छोटे क्लास से लिया है। देखो अभी देखो यहाँ पे दो पावर्स है ना, तो एक पावर बनाओ, ठीक है। तो अगर if 2 times is power there, then we have to make it 1 times, that is if a to the power m into a to the power m, so we will multiply what, a to the m into a to the power m into m, that is we are multiplying just nothing but their powers for first term, okay, in first case। so देखो 4 2 से कितना है 8 मल्टीप्लाई, फिर 2 बेस में 2 है, फिर 3 3 से कितना है 9, ठीक है, फिर डिवाइड साइन एंड 2 to the power 5 2 से कितना होगा 10 आएगा, फिर से क्या आ जाएगा। तो मैं पहले जो लाइन था वो इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दो पावर से इसको भी क्या करो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो नीचे जो आएगा क्या, देखो यहाँ पे भी इस ब्रैकेट में देखो दोनों बेस जो है सेम है, क्या है 2 to the power 8 और 2 to the power 9, बेस सेम है, ठीक है, बेसेस आर सेम एंड देयर पावर्स आर डिफरेंट, बट वी नो व्हाट इन केस ऑफ बेसेस आर डिफरेंट, the bases are same and powers are different, and in between terms multiply sign are there, then power will be what, power will be added। अगर पावर अगर अलग अलग है और बेस सेम है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई साइन है, तो पावर क्या होता है ऐड होता है। तो 9 + 8 + 9 आएगा डिवाइडेड बाई 2 to the power 10। तो देखो 9 + 8 कितना होता है, 8 + 8 16 + 1 17 डिवाइडेड बाई 2 to the power 10। अभी जो फाइनल जो हमारा लाइन आया क्या आया 2 to the power 17 डिवाइडेड बाई 2 to the power 10, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर डिवाइड्स है और इन दोनों टर्म्स में और इनका पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तभी माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से 17 से 10 चला गया तो कितना है 2 to the power 10 विल बी 7 विल बी रिमेन, ठीक है। तो यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड के रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ओके, जो 6 नंबर के क्वेश्चन हमने क्या लिया है, देखो 3 इंटू ऊपर में न्यूमिनेटर में देखो डिवाइडेड बाई, हाँ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर में क्या है 3 × 7 to the power 3 5 to the power 8, नीचे क्या है 21 × 15 है। तो इस वाले को कैसे सोल्व करना है, देखो आइए मेरे साथ करते जाओ। 7 × 3 × 5 to the power 8, एक लाइन तो पहले न्यूमिनेटर में जो भी है लिख दो। सेकंड में देखो 21 है, 21 हमको सबको 7 का टेबल पता है, 7 3 से कितना होता है 21 है, 3 में कितना टाइम्स आता है 7 टाइम्स और 7 में 3 टाइम्स होता है। अभी देखो 15 5 3 से कितना है 15 और 3 में 5 टाइम्स और 5 में 3 टाइम्स, ठीक है। अभी देखो इसके पावर में कुछ है नहीं तो 1 है, ठीक है, और इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, ठीक है कि नहीं। तो देखो और एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ऊपर है 3 है, यहाँ पे 3 है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बचा क्या है, देखो 7 5 3 क्या आ जाएगा 7 5 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या था 7 क्यू मतलब 3 7 to the power 3 × 5 to the power 8, नीचे क्या है एक 7 बचा है जिसके पावर में कुछ होता नहीं, अगर पावर में कुछ है नहीं तो मतलब 1 है, अगर 0 है तो इट विल बी गिवन, ठीक है। तो देखो फिर क्या है 5 to the power 1 एंड 3 ओनली 3 के कुछ है नहीं तो एक 3 बचा हुआ था ना, तो ये मतलब लाइन में इरेज करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो जो है 7 के, अभी देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी नीचे 7 है, यहाँ पे अगर ये दोनों इस वाले टर्म को देखें तो इस वाले टर्म अगर इस वाले टर्म का अगर सब अकेला ये टर्म होता तो क्या होता है, इन दोनों बेस इक्वल है, पावर क्या है पावर डिफरेंट है, और बेस अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो डिवाइड के साइन में इस वाले साइन को क्या बोलते हैं डिवाइड, और डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं माइनस। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम 7 3 -1, तो पहला वाला जो ये 7 का जो किस्सा खत्म। अभी इनटू मल्टीप्लाई, अभी देखो 5 to the power 8 है ऊपर और नीचे क्या है 5 to the power 1 है, तो देखो बेसिस आर सेम इन बिटवीन देम व्हाट डिवाइड साइन इज देयर नो, एंड द पावर विल बी व्हाट पावर विल बी माइनस, तो नीचे एंड डिवाइडेड बाई इज रिमेनिंग इज व्हाट 3। तो 7 से
3 से 1 चला गया तो 2 एंड 5 से 8 चला गया तो 7। ठीक है, तो यही है इस वाले क्वेश्चन का आंसर, आगे कुछ नहीं सॉल्व होने वाला है। ठीक है, 7 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट हो जाए। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तक सॉल्व कर लिया। तो मेरे साथ लिखते चलना, कॉपी और पेन है तो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट। ठीक है, जब भी मैं इरेज कर लेता हूँ बिफोर दैट यू शुड टेक ए स्क्रीनशॉट, हाँ, दैट सो दैट यू कैन राइट इन इट लेटर। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है 25 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 9 टू द पावर 4, और नीचे क्या है 10 इंटू 9 टू द पावर 3 है। ठीक है, तो 25 को मैंने पहले ही बोल दिया कि 5 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं, 5 में क्या, इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर के एक्सपोनेंट्स के रूल्स में क्या है, बेस सेम है। 25 मतलब क्या है 5 इंटू 5, आपको सबको पता है, टेबल को सीखा है। और अगर 5 लिखा है तो 5 इंटू 5 के पावर कुछ है नहीं तो वो 1 है, और बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, सो देखो 25 में अगर कभी है तो 5 के पावर में 2 लिखना, तो मतलब इसको कहते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 टू द पावर 0, 9 टू द पावर 4, और 10 है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 9 टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ पे 5 कितना टाइम्स है 5 टू द पावर 0। ठीक है, और 5 टू द पावर 0 में क्या लिख सकते, यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 0। ठीक है, 5 टू द पावर कुछ है नहीं तो 1 है, 2 के पावर में 1 है, 9 के पावर में देखो हम जानते, हमको पता है क्या, अगर बेसिस आर सेम न्यूमरेटर में देखो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो, इफ द बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड टू 9 टू द पावर 4 बचा है। नीचे क्या है 5 टू द पावर 1, कुछ है नहीं तो 2 टू द पावर 1 9 टू द पावर 3। ठीक है, इतना तक स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो लिख लो जल्दी से। मैं पहला वाला लाइन इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन जो है। तो आगे देखो 5 टू द पावर 0 प्लस 2 मतलब क्या है 5 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 4, फिर नीचे क्या है 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, फिर से एक बार लिखना है, और 9 टू द पावर 3। ठीक है, तो फिर सेकंड भी लाइन में इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी देखो इस वाले और इस वाले टर्म दोनों के बेस में सेम है 5 है, लेकिन पावर में क्या है डिफरेंट, पावर डिफरेंट है, और इन दोनों के बीच में साइन जो है मल्टीप्लाई डिवाइड साइन है। क्या साइन है, डिवाइड साइन। तो इसीलिए अगर बेसिस आर सेम एंड इन केस ऑफ डिवाइड इन बिटवीन टू टर्म्स, इफ देयर बेसिस आर सेम एंड देयर पावर्स आर डिफरेंट, सो इन दैट टाइम वी माइनस दैट। ओके, देयर पावर विल बी -2 - 1 इंटू 9 क्या है देखो 9 यहाँ पे 4 है और नीचे क्या है 3 है, तो ये दोनों टर्म में भी बीच में क्या है डिवाइड साइन है, और इन दोनों का बेस सेम है। ठीक है, इसलिए माइनस डिवाइडेड बाय 2 तो है नहीं तो कुछ, तो यही रहेगा। अभी देखो 5 से 2 से 1 चला गया तो 5 1 एंड यहाँ पे भी 9। ठीक है, सो इस वाले का यही आंसर है। सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और दिस इज द लास्ट, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। सो वी विल सॉल्व दिस वेरी सिंपली प्रोसेस है, इन ए वेरी सिंपली वे, बिकॉज देखो जो भी है, बिकॉज इस वाले जो क्वेश्चन अदर जो हम लोगों ने पहले जो साथ क्वेश्चन किया है इससे थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो ये अच्छे से करना, अच्छे से दिखना, ताकि अच्छे से समझ में और तुम लोगों को ज़्यादा हेल्प है। इस वाले रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व मैनी मोर्स इन योर बुक्स, सो और यू कैन टेक एंड फ्रॉम अनदर बुक्स। सो इस वाले को अच्छे से देखना कैसा करते हैं। तो पहले डिवाइड साइन मैंने दे दिया, यहाँ पे क्या है 7 टू द पावर 5 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, कहाँ पे ब्रेक 3 के पावर में 2 है, लिख लो। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है 6 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 के बिहाफ में 3 इंटू 2 है कि नहीं। अगर 6 के ओनली ऑन बिहाफ ऑफ 6, 3 2 जा कितना है 6, और 6 के पावर में क्या था 4 था, तो 3 इंटू 2 लिख के आपको पावर में क्या लिखना पड़ेगा होल थिंग, मतलब ब्रैकेट दे के ब्रैकेट के अंदर लिखो 3 2 जा 3 इंटू 2 मतलब 3 2 जा 6। ठीक है, और इंटू पावर में क्या लिखना है, और यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2। ठीक है, क्योंकि 2 के पावर में हम 2 लिख रहे हैं, तो 2 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या है 4। ठीक है, तो बस इसी रीजन था। यहाँ पे देखो 22 1 टू द पावर, यहाँ पे देखो 7 3 2 3, बस यही दोनों यही 3-4 नंबर। ठीक है, 7 3 2 यही 3 नंबर जो है वो बेस में लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखो 7 है और 3 है, तो 21 मतलब क्या है 3, जैसे कि यहाँ पे लिखा 7 6 के बिहाफ में 3 इंटू 2, यहाँ पे भी 21 के बिहाफ में क्या लग सकते हैं हम, क्योंकि ऊपर में जो बेस है 7 और 3 है ना कि 21, तो दैट इज वाई वी विल डू व्हाट 7 3 जा
7 3 जा व्हाट, वी कैन राइट 7 3 जा 21 ऑन बिहाफ ऑफ 21 एंड होल थिंग टू द पावर 2। अभी देखो 343 किस पावर में कितना होता है पता है? 7 की पावर में 3 लिख दिया तो 7 क्यूब, 3 लिखा तो क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। 3 अगर सेकंड की किसी की पावर किसी भी नंबर जैसे कि 5 के पावर में 3, 2 की पावर में 3, तो अगर यह क्या बोलेंगे 2 टू द पावर 3, आइदर 2 टू द पावर 3 और वी कैन से 2 क्यूब। यहाँ पे भी आइदर 2 टू द पावर 7 टू द पावर 3 और 7 क्यूब, 5 क्यूब और 5 टू द पावर 3, ठीक है। सो 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। और यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 6 और 81 किसका? 3 टू द पावर 4 होता है, ठीक है। क्यों लिखा हमने 3 टू द पावर 4? क्योंकि 3 टू द पावर 4 मतलब 3 कितना टाइम्स लगेगा? 3 विल बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ विथ 4 टाइम्स। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो दैट इज 81, ठीक है। सो दैट इज व्हाई we can write on behalf of 81 3 to the power 4, ठीक है। on behalf of 21 7 into 3, 21 मतलब क्या है? 7 3 जा 21 होल थिंग स्क्वायर, ठीक है। तो पहला लाइन मैंने इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन लिख लेना। सो धीरे धीरे करना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। तो देखो पहले न्यूमरेटर में हमारा था ये, फिर से डिवाइड साइन दो, 7 टू द पावर 5, 2 3 टू द पावर 2। यहाँ पे देखो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर एक्सपोनेंशियल रूल्स में ये भी आता है। अगर a टू द पावर m और होल थिंग टू द पावर m है, ठीक, a इंटू b होल थिंग टू द पावर m है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर। इसका मतलब a की पावर में भी n है, b की पावर में भी n है। पावर जो है इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल रूल्स में आपने ये सीखा कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, अगर बेस पावर्स आर सेम एंड बेसेस आर डिफरेंट तो बेसेस विल बी मल्टीप्लाई, पावर विल बी राइटिंग 1 टाइम्स, ठीक है। दैट इज व्हाई हम 3 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे देखो आखिर में क्या है? 2 स्क्वायर है, लिख लो। अभी देखो 7 इंटू 3 होल थिंग टू द पावर 2 है ना, तो एक बार हम क्या लिखेंगे? 7 की पावर में 2 और 3 की पावर में 2, ठीक है। फिर 7 की पावर में 3, फिर 2 की पावर में 6, फिर 3 की पावर में 4, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस वाले लाइन से अगले लाइन, पहला ये वाला लाइन है, ठीक है। इसके नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये आएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला लाइन है, तो मैं ये इरेज कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव डोंट एनफ स्पेस टू सॉल्व दिस। सो देखो अभी देखो इन नीचे में, ऊपर में देखो किसका बेसिस आर सेम एंड देयर पावर्स आर बेसिस आर सेम। सो देखो यहाँ पे देखो 7 टू द पावर 5 है, 7 है क्या इसमें? और कोई 7 है? नहीं है। तो देखो सेम, तो देखो यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है, और दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, एंड इन दोनों बीच में क्या है? मल्टीप्लाई साइन है, तो इन दोनों का पावर क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, इस वाले में 2 है, तो 2 का पावर यहाँ पे 4 और 3 इन दोनों में बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो 7, यहाँ पे भी 7, तो मतलब 2 7 है और इन दोनों में है क्या? मल्टीप्लेशन है। इस वाले 7 और इस वाले 7 की क्या एक्चुअली क्या है? भले ये थर्ड टर्म से, तो it doesn't matter if it is in the third place or fourth place or in the fourth term or fifth term, but अगर सब में अगर मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है और मल्टीप्लाई साइन है, then you have to add as you have to go through that way, that rules, that identities, that is a to the power n into a to the power n, whatever we have, that is a plus n, ठीक है। तो 7 क्या है? 2 है और 7 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे भी 3 है, 3 के पावर में 2 है, मल्टीप्लाई देखें यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों 3 के बीच में क्या हमको सपोज करना, ये सोचना पड़ेगा, ये दोनों देखो हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेकंड में और ये फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इन दोनों का भी क्या करेंगे? पावर को प्लस करेंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर बेसिस आर सेम एंड इन बिटवीन देम देयर पावर्स आर डिफरेंट, powers are what? Powers are different, then power will be added in case of multiplication. And आखिर में क्या बचा है? 2 to the power 6 हो गया। सो हमारा अगला जो कैलकुलेशन आएगा क्या? देखो अभी जो पावर में हमने प्लस करके लिखा है इस वाले को ऐड करो पहले। तो 3 के पावर में क्या आएगा? 2 + 4 is 6, अगेन 4 + 2 is 6, नीचे क्या है? 7, 2 + 3 is 5, अगेन 3 6, ठीक है।
सो हमारा अगला जो लाइन है क्या, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिवाइड्स इन दोनों टर्म में, यहाँ पे 7 टू द पावर 5 है, नीचे भी डिवाइडेड बाई क्या है 7 टू द पावर 5 है। तो अगर 7 टू द पावर 5 अगर बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट हो या सेम हो, इट डजंट मैटर। इफ द बेसिस आर सेम, इन केस ऑफ डिवाइड पावर क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे भी 3 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे नीचे भी 3 टू द पावर 6 है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6। हम काट भी सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन वी विल नॉट काट इट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग थ्रू द एक्सपोनेंशियल पावर्स रूल्स। तो ऊपर में 2 टू द पावर 6 है, तो डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। तो 7 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0। क्यों 0 लिखा है हमने, बिकॉज ऑफ अगर 5 से 5 चला गया तो 0, 5 इंटू 5 6 है, तो एनीथिंग टू द पावर 0। अगर a टू द पावर 0 हमको यान है 1 है, तो 2 टू द पावर 0 भी क्या आ जाएगा, 1 है। तो 5 टू द पावर 0, कोई किसी की पावर में अगर 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू फैक्टराइज रूल्स we can write 1 into 1 into 1, that is answer is 1. So this is the answer of the final in the final step. So up to this I have finished of today's class. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, प्लीज बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी दूसरों को भी ये फ़ायदा मिले, ठीक है, मेरे क्लास का। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर करो भाई, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।